নমস্কাৰ বিগ ব্ৰেকিংৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী আৰু প্ৰথমে ডাবল মাৰ্ডাৰৰ খবৰ ধুবুৰী বিলাসীপাৰা ডাবল মাৰ্ডাৰ দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে হুৱাপাটিতে স্বামী স্ত্ৰীক হত্যা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰা ঘটনাটোৰ পিছতে এতিয়া ব্যাপক চাঞ্চল্য হুৱাপাটিতে অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছে স্বামী স্ত্ৰীক চুকা অস্ত্ৰৰে হানি খুচি দম্পতীক হত্যা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই বিলাসীপাৰা ৰাণীগঞ্জৰ কুৰখাকাটি গাঁৱত এই ঘটনা মৃত দুগৰাকী শাহজালাল হুছেইন আৰু নাৰ্জিনা বেগম শাহজালাল বিলাসীপাৰা চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত মোহৰী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল আৰু এই দম্পতীৰ একমাত্ৰ কন্যা গুৱাহাটীত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিল গুৱাহাটীত আছে কন্যা ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এতিয়া এটা ব্যাপক চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে হুৱাপাটিতে হত্যা কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ হৈছে কোন হ'ব পাৰে দুৰ্বৃত্ত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে অতি চুকা অস্ত্ৰৰে এই দম্পতীক হত্যা কৰা হৈছে হুৱাপাটিতে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছে স্বামী স্ত্ৰীক চুকা অস্ত্ৰৰে হানি খুচি এই দম্পতীক হত্যা কৰিছে হত্যাকাৰী কোন আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ইয়া কন্যা এই খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে গুৱাহাটীত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা কন্যা নিজৰ ঘৰখনত উপস্থিত হৈছে হাহাকাৰ অৱস্থা পৰিয়ালত বিলাসীপাৰাৰ ৰাণীগঞ্জৰ কুৰখাকাটি গাঁৱতে ঘটনা মৃত দুগৰাকী শাহজালাল হুছেইন আৰু নাৰ্জিনা বেগম শাহজালাল হুছেইন বিলাসীপাৰা চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত এগৰাকী মোহৰী হিচাপে কৰ্মৰত আছিলে আৰু হুৱাপাটিতে স্বামী স্ত্ৰীক অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছে চুকা অস্ত্ৰৰে হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছে এই দম্পতীৰ একমাত্ৰ কন্যা গুৱাহাটীত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিল আৰু ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে এক প্ৰকাৰ মূৰত সৰগ ভাগি পৰিছে কন্যাৰ আৰু ইতিমধ্যে বিলাসীপাৰা ঘৰখনত উপস্থিত হৈছে হুৱাপাটিতে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা এই গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি হৈছে কিছু ভাষ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমি সেই ভাষ্য আগবঢ়াম যে কি হ'ব পাৰে ঘটনাৰ সবিশেষ বা কোনে পৰিয়ালটোক এই ধৰণে টাৰ্গেট কৰি লৈছিল কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছো আমাৰ ধুবুৰী সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে জ্যোতিৰ্ময় অতি ভয়ানক ঘটনা চুকা অস্ত্ৰৰে হুৱাপাটিতে এই ধৰণে হত্যা কৰা হৈছে এই স্বামী স্ত্ৰীক গীতাশ্ৰী অতি ভয়ানক অতি লোমহৰ্ষক এটা ঘটনা যি ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলক জোকাৰি গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি য'ত উপস্থিত আছোঁ এই গৃহতেই আচলতে যে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব পাৰোঁ এই বাসগৃহতেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে বৰ্তমানে কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ ইয়াত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে আৰু অলপ আগতে আৰক্ষী ইয়াৰ পৰা যি হত্যা কৰা দম্পতীৰ হালৰ যি মৃতদেহ আছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ গৈছে আৰু বৰ্তমানে তেওঁৰ একমাত্ৰ কন্যা আমি প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ গুৱাহাটীত পৰিছিলে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ গোটেই গাঁৱৰ মানুহ অঞ্চলৰ মানুহ ইয়াত আহি একত্ৰিত হৈছে তেওঁলোকক সমবেদনা জনাবলৈ কাৰণ এনেধৰণৰ এটা ঘটনা যি ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চল কেৱল মাত্ৰ বিলাসীপাৰা বুলি নহয় সমগ্ৰ ৰাজ্যতে খলকনি সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ এই ঘটনা এটা আচলতে সাধাৰণ ঘটনা নহয় যথেষ্ট এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এক ঘটনা আমি গৃহটোৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ অলপ যত্ন কৰি আছোঁ চেষ্টা এটা কৰি আছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখা পাইছে এক সাংঘাতিক এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ঘৰৰ ভিতৰত আমি যদি আপোনালোকক সেই দৃশ্য বৰ্তমানে দেখুৱাব পাৰিছোঁ আমাৰ কেমেৰা যোগেদি এয়া এই ঘৰটোতেই এই ঘৰৰ ভিতৰতে এতিয়া সন্দেহ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ মতে হয়তো শুকুৰবাৰে নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কাৰণ কালি শনিবাৰে মানুহে গম পায় আৰু গম পাই পেলাই আৰু তেওঁলোকৰ আমি ঘৰৰ ভিতৰতো প্ৰৱেশৰ চেষ্টা এটা কৰিম ইয়াত পৰিয়ালৰ যি একমাত্ৰ কন্যাজনী ইয়াতে আছে যথেষ্ট অসুস্থ হৈ আছে তাইৰ লগত আচলতে আমি কথা পাতিব বিচৰা নাই আৰক্ষীৰ বৰ্তমানে পহৰা ইয়াত আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যদি দেখুৱাব পাৰোঁ ইয়াত কি ক'ব বিচাৰে তেওঁৰ ভাষ্য যদি আচলতে আমি শুনাব পাৰোঁ এই মুহূৰ্তত আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ তেওঁৰ ভাষ্য শুনাবলৈ মই 3টা বজাত আহিছোঁ মই ফুমাৰ ঘৰত আছিলোঁ তাৰপিছত মই ইয়াতে 9টা বজাৰ ইফালে আহিছোঁ আহি মা দেউতাকত দেখিলোঁ যে গাত খুনত লেটপাত হৈ বিচনাত আছিল দুজনে তুমি কি বিচাৰা মই নাই বিচাৰোঁ কি নাম
মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু DGP ছাৰৰ ওচৰত মোৰ এইটোৱে অনুৰোধ থাকিব যে মোৰ মা দেউতাৰ যোনে হত্যা কৰিছে তাক যাতে ফাঁচি দিয়া হয়। মই মেডিকেলৰ কোচিং কৰি আছোঁ। ফোন কৰাই নাই মই ইভিনিঙত কল কৰিছোঁ 6টা বজাৰ এইফালে। তেতিয়া মই দেউতাকো কল কৰিছোঁ, তেতিয়া কল কৰি যেতিয়া পোৱা নাই তেতিয়া মই আণ্টিৰ ল'ৰা মোৰ ভাই হয় তাক কল কৰিছোঁ, কল কৰি তাক আহিব কৈছোঁ ইয়াতে। কাৰো ওপৰত কিবা সন্দেহ কোনো ধৰণৰ পাৰিবাৰিক শত্ৰুতা কাৰো লগত কিবা আছিল? হয়তো জ্যোতিৰ্ময় তেওঁ ক'ব পৰা হয়তো অৱস্থাত এই মুহূৰ্তত নাই। স্বাভাৱিকতে পিতৃ মাতৃক এই ধৰণৰ বিচনাত দেখা পায় বা এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ দেখা পায় হয়তো। তাত কিন্তু পৰিয়ালৰ লোক আৰু কিছু আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আৰু কিছু কথা পাতিব নেকি জ্যোতিৰ্ময়? হয় হয় হয়, আমি কথা পাতিম, গীতাশ্ৰী কথা পাতিম। গোটেই এটা কি মানে ঘটনাটো যদি বিৱৰণটো দিয়ে আচলতে প্ৰথমতে কিদৰে এই ঘটনাটো হ'ল? হয়, ঘটনাটো একচুৱেলি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। শুক্ৰবাৰ ৰাতিয়ে তেখেতৰ শ্বাহজালাল আৰু নাৰ্জিমা বেগমক নিশা মানে মৰ্মান্তিক মানে অতি বৰ্বৰভাৱে মানে ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰা হৈছে। এই গোটেই ঘটনাটো কেনেকৈ পোহৰত আহিল, কেনেকৈ মানে সেইটো কৈছোঁ যে শুক্ৰবাৰে ৰাতি এই ঘটনাটো হৈছে। গোটেই দিনটো মানুহ খবৰ পোৱা নাই, হয়তো মানুহ ভাবিছে ক'ৰবাত গুচি গৈছে নেকি। সন্ধিয়াহে ওচৰৰ পাজৰৰ ৰাইজে গম পাইছে যে আহি চাই যে উঠোৱা নাই, মানুহ নাই। তেতিয়া মানুহ দৰ্জা খুলি চাই যে নিথৰ দেহ পৰি আছে দুজনৰ। আৰু ইমান বেদনাদায়ক মৃত্যু মই কাহিনীও দেখা নাই। আৰু বিলাসীপাৰাত একচুৱেলি ক্ৰিমিনেলৰ জোন হৈ গৈছে। এইটোৱে প্ৰথম নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও এই গাঁৱতে এহাল দম্পতীক এনেকৈ হানি খুচি গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল। কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ৰেছপন্স নিদিয়াৰ ফলত আজিলৈকে সেই কেছৰ মানে তদন্ত নহ'ল, ইভেন চাৰ্জশ্বিট নহ'ল। আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ একদম চূড়ান্ত গাফিলতি। ইয়াৰ পূৰ্বে ওচৰতে বাঘমাৰী গাঁৱতো ছেইম এনেকুৱাই এহাল দম্পতীক ৰাতি হানি খুচি হত্যা কৰা হ'ল। এই কেছতো দেখা গ'ল যে কোনো ধৰণৰ তদন্ত নাই, কোনো ধৰণৰ আসামী কৰায়ত্ব কৰা নহ'ল, এনেকৈ পেলাই থোৱা হ'ল, কোনো চাৰ্জশ্বিট দিয়া নহ'ল। এই ঘটনাৰ মটিভ বিহাইণ্ড মানে কিবা ডকাইতি কিবা কৰিছে? মটিভ বিহাইণ্ড মানে বস্তু বাহিনী লৈ গৈছে নেকি? বস্তু বাহিনী একো লোৱা এতিয়ালৈকে তদন্ত চলি আছে, আমি গম পোৱা নাই। কিন্তু ইয়াত এটা গেং আছে, ডাঙৰ গেং আছে, আৰু পুলিচ প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে এই গেঙক কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই। আমি তদন্ত এই কেছটো যিটো তদন্ত চলি আছে, যিজন ব্যক্তিৰ লগত এই ঘটনাটো হ'ল, যি পৰিয়ালটোৰ লগত, তেওঁলোকৰ কোনো শত্ৰুতা, কোনো পাৰিবাৰিক ভূমিকেন্দ্ৰিক বা ইত্যাদি কিবা? মই যিমান দূৰ জানো তেওঁ এজন নিজে একদম সহজ সৰল অমায়িক ধৰণৰ ব্যক্তি আছিল। তেখেতৰ লগত কোনোবাই এটা জোৰকে কথাও মানে কোৱা নাছিল। অৰ্থাৎ গোটেই বিষয়টো সন্দেহৰ আৱৰ্তত। কিন্তু ডাঙৰ কথা এটা এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে উল্লেখ কৰিছে যে তাত এটা গেং এটা আছে। ইয়াৰ পূৰ্বে তেনেকুৱা স্বামী স্ত্ৰীক হত্যা কৰা ঘটনা ঘটিছে। জ্যোতিৰ্মা, আমি কিছু সময় পিছত আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম, পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। এই মুহূৰ্তত কিছু সময়ৰ বাবে আঁতৰিছো। অতি ভয়ানক ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 104 সংখ্যক মান কি বাত দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছে, পোনপটীয়াকৈ লৈ যাম। नमस्ते सर। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले भारत की यूनिवर्सिटीज में से सिलेक्ट की गई टीम, आप लोगों ने जो भारत का नाम रोशन किया है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अपने प्रदर्शन से हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रगति, मैं इस बातचीत की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि 2 मेडल जीतने के बाद आप जब यहां से गई तब ये सोचा था क्या, और इतना बड़ा विजय प्राप्त किया तो महसूस क्या हो रहा है? तो बहुत प्राउड फील कर रही थी मैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपने देश का झंडा इतना ऊंचा लहरा के आई हूँ कि एक बार तो ठीक है गोल्ड फाइट में पहुंचे थे, उसको लूज किया था तो रिग्रेट हो रहा था, और दूसरी बार यही था दिमाग में कि अब कुछ हो जाए, ये इसको नीचे नहीं जाने देना है, इसको हर हाल में सबसे ऊंचा लहरा के ही आना है। जब हम फाइट को लास्ट में जीते थे तो वहीं पोडियम पे हम लोग ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। वो मोमेंट बहुत अच्छा था, इतना प्राउड फील हो रहा था कि
मतलब हिसाब नहीं था उसका। प्रगति, आपको तो फिजिकली बहुत बड़े प्रॉब्लम आए थे, उसमें से आप उभर करके आई। ये अपने आप में देश के नौजवानों के लिए बड़ा इंस्पायरिंग है। क्या हुआ था आपको? 5 मई 2020 में मुझे सर ब्रेन हैमरेज हुआ था। मैं वेंटिलेटर पे थी। कुछ कंफर्मेशन नहीं थी कि मैं बचूंगी कि नहीं, और बची तो कैसे बचूंगी, बट इतना था कि हाँ, मुझे अंदर से हिम्मत थी कि मैंने जाना है, वापस ग्राउंड पर खड़े होना है, एरो चलाने। मेरे को मेरी जिंदगी बचाई है जो सबसे बड़ा हाथ भगवान का, उसके बाद डॉक्टर का, फिर आर्चरी का। हमारे साथ अमलान भी है। अमलान, जरा बताइए, आपकी एथलेटिक के प्रति इतनी ज्यादा रुचि कैसे डेवलप की? जी नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। सर एथलेटिक्स के प्रति तो पहले उतनी रुचि नहीं थी, पहले हम फुटबॉल में थे ज़्यादा। बट जैसे जैसे मेरे भाई का एक दोस्त है तो उन्होंने मेरे को बोला कि अमलान तुम्हें एथलेटिक्स में कंपटीशन में जाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो पहला जब मैंने स्टेट मीट खेला तो मैं हार गया उसमें। तो हार मुझे अच्छी नहीं लगी, तो ऐसे करते करते मैं एथलेटिक्स में आ गया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे अभी मजा आने लग रहा है, तो ऐसे ही मेरा रुचि बढ़ गया। अमलान, जरा बताइए, ज्यादातर प्रैक्टिस कहाँ की? ज्यादातर मैंने हैदराबाद में प्रैक्टिस की है, साई रेड्डी सर के अंडर। फिर उसके बाद में भुवनेश्वर में शिफ्ट हो गया, तो उधर से मेरा प्रोफेशनली स्टार्ट हुआ सर। अच्छा, हमारे साथ प्रियंका भी है। प्रियंका, आप 20 किलोमीटर रेस वॉक टीम का हिस्सा थी। सारा देश आज आपको सुन रहा है और वे इस स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। आप ये बताइए कि इसके लिए किस तरह की स्किल की जरूरत होती है और आपकी कैरियर कहाँ कहाँ से कहाँ पहुंची? मेरे जैसे इवेंट में मतलब काफी टफ है, क्योंकि हमारे 5 जज खड़े होते हैं। अगर हम भाग भी लिए तो भी वो हमें निकाल देंगे, या फिर थोड़ा रोड से अगर हम उठ जाते हैं, जंप आ जाती है तो भी वो हमें निकाल देते हैं, या फिर हमने नी बैंड किया तो भी हमें निकाल देते हैं। और मेरे को तो वार्निंग भी 2 आ गई थी। उसके बाद मैंने अपनी स्पीड पे इतना कंट्रोल किया कि कहीं ना कहीं मुझे टीम मेडल तो एटलीस्ट यहाँ से जीतना ही है, क्योंकि देश के लिए यहाँ पे आए हैं और हमें खाली हाथ यहाँ से नहीं जाना है। और पिताजी, भाई वगैरह सब ठीक है? हाँ जी सर, सब बढ़िया। मैं तो सबको बताती हूँ कि आप मतलब इतना मोटिवेट करते हैं हम लोग को। सच में सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जैसे खेल्स को इंडिया में इतना पूछा भी नहीं जाता, लेकिन अब इतना सपोर्ट मिल रहा है ना इस गेम में भी। मतलब हम ट्वीट भी देख रहे हैं कि हर कोई ट्वीट कर रहा है कि हमने इतने मेडल जीते हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है कि ओलंपिक्स की तरह इसको भी इतना बढ़ावा मिल रहा है। चलिए प्रियंका, मेरी तरफ से बधाई है, आपने बड़ा नाम रोशन किया है। आइए हम अभिदन्य से बात करते हैं। नमस्ते सर। बताइए अपने विषय में। सर मैं प्रॉपर कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं शूटिंग में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल दोनों इवेंट करती हूँ। मेरे माता पिता दोनों एक हाई स्कूल टीचर है। तो मैंने 2015 में शूटिंग स्टार्ट किया। जब मैंने शूटिंग स्टार्ट किया तब उधर कोल्हापुर में उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। बस से ट्रैवल करके पेट वडगांव से कोल्हापुर जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, तो वापस आने के लिए 1.5 घंटा और 4 घंटे की ट्रेनिंग। तो ऐसे 6-7 घंटे तो आने जाने में और ट्रेनिंग में जाते थे। तो मेरी स्कूल भी मिस होती थी। तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि बेटा एक काम करो, हम आपको सैटरडे संडे को लेके जाएंगे शूटिंग रेंज के लिए और बाकी टाइम आप दूसरे गेम्स करो। तो मैं बहुत सारे गेम्स करती थी बचपन में, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को दोनों को खेल में काफी रुचि थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं था और उतनी जानकारी भी नहीं थी। इसलिए मेरी माताजी का बड़ा सपना था कि देश को रिप्रेजेंट करना चाहिए और फिर देश के लिए मेडल भी जीतना चाहिए। तो मैं उनकी ड्रीम कंप्लीट करने के लिए बचपन से काफी खेलकूद में रुचि लेती थी। और फिर मैंने ताइक्वांडो भी किया है, उसमें भी ब्लैक बेल्ट हूँ, और बॉक्सिंग, जूडो और फेंसिंग और डिस्कस थ्रो, ऐसे बहुत सारे गेम करके फिर मैं 2015 में शूटिंग में आ गई। फिर 2-3 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया और फर्स्ट टाइम मेरा यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए मलेशिया सिलेक्शन हो गया और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो उधर से एक्चुअली मुझे पुश मिला। फिर मेरे स्कूल ने मेरे लिए एक शूटिंग रेंज बनवाई, फिर मैं उधर ट्रेनिंग करती थी और फिर उन्होंने मुझे पुणे भेज दिया ट्रेनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे गगन नारंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, गन फॉर ग्लोरी,
तो मैं उसी के अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी। गगन सर ने मुझे काफी सपोर्ट किया और मेरे गेम के लिए बढ़ावा दिया। अच्छा, आप चारों में से कुछ कहना चाहते हो तो मैं सुनना चाहूंगा। प्रगति हो, अम्लान हो, प्रियंका हो, अभिदन्या हो, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कुछ कहना चाहते हैं तो मैं जरूर सुनूंगा। सर मेरा एक सवाल है सर। जी। आपको सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कौन सा लगता है सर? खेल की दुनिया में भारत को बहुत खिलना चाहिए और इसलिए मैं इन चीजों को बहुत बढ़ावा दे रहा हूं। लेकिन हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो ये हमारी धरती से जुड़े हुए खेल हैं। इसमें तो हमने कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि आर्चरी में हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं, शूटिंग में अच्छा कर रहे हैं। और दूसरा मैं देख रहा हूं कि हमारे यूथ में और इवन परिवारों में भी खेल के प्रति अब पहले जो भाव था वो नहीं है। पहले तो बच्चा खेलने जाता था रोकते थे, अब बहुत बड़ा वक्त बदला है। और आप लोगों ने जो सक्सेस लेते आ रहे हैं ना, वो सभी परिवारों को मोटिवेट करती है। हर खेल में जहां भी हमारे बच्चे जा रहे हैं कुछ न कुछ देश के लिए करके आते हैं। और ये खबरें आज देश में प्रमुखता से दिखाई भी जाती हैं, बताई जाती हैं और स्कूल कॉलेज में चर्चा में भी रहती हैं। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। नमस्कार। मेरे परिवारजनों, इस बार 15 अगस्त के दौरान देश ने सबका प्रयास का सामर्थ्य देखा। सभी देशवासियों के प्रयास ने हर घर तिरंगा अभियान को वास्तव में हर मन तिरंगा अभियान बना दिया। इस अभियान के दौरान कई रिकॉर्ड भी बने। देशवासियों ने करोड़ों की संख्या में तिरंगे खरीदे। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस के जरिए करीब 1.5 करोड़ तिरंगे बेचे गए। इससे हमारे कामगारों की, बुनकरों की और खासकर महिलाओं की सैकड़ों करोड़ रुपए का आय भी हुई है। तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने में भी इस बार देशवासियों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले साल 15 अगस्त तक करीब 5 करोड़ देशवासियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट की थी। इस साल ये संख्या 10 करोड़ को भी पार कर गई। साथियों, इस समय देश में मेरी माटी मेरा देश, देशभक्ति की भावना को उजागर करने वाला अभियान जोरों पर है। सितंबर के महीने में देश के गांव-गांव में हर घर से मिट्टी जमा करने का अभियान चलेगा। देश की पवित्र मिट्टी हजारों अमृत कलश में जमा की जाएगी। अक्टूबर के अंत में हजारों अमृत कलश यात्रा के साथ देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। इस मिट्टी से ही दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है हर देशवासी का प्रयास इस अभियान को भी सफल बनाएगा। मेरे परिवारजनों, इस बार मुझे कई पत्र संस्कृत भाषा में मिले हैं। इसकी वजह यह है कि सावन मास की पूर्णिमा इस तिथि को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। सर्वेभ्यः विश्व संस्कृत दिवसस्य हार्दिक शुभकामनाः। आप सभी को विश्व संस्कृत दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसे कई आधुनिक भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। संस्कृत अपनी प्राचीनता के साथ साथ अपनी वैज्ञानिकता और व्याकरण के लिए भी जानी जाती है। भारत का कितना ही प्राचीन ज्ञान हजारों वर्षों तक संस्कृत भाषा में ही संरक्षित किया गया है। योग, आयुर्वेद और फिलॉसफी जैसे विषयों पर रिसर्च करने वाले लोग अब ज्यादा से ज्यादा संस्कृत सीख रहे हैं। कई संस्थान भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन, संस्कृत फॉर योग, संस्कृत फॉर आयुर्वेद और संस्कृत फॉर बुद्धिज्म जैसे कई कोर्सेज करवाता है। संस्कृत भारती लोगों को संस्कृत सिखाने का अभियान चलाती है। इसमें आप 10 दिन के संस्कृत संभाषण शिविर में भाग ले सकते हैं।
मुझे खुशी है कि आज लोगों में संस्कृत को लेकर जागरूकता और गर्व का भाव बढ़ा है। इसके पीछे बीते वर्षों में देश का विशेष योगदान भी है। जैसे 3 संस्कृत डीम्ड यूनिवर्सिटीज को 2020 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाया गया। अलग अलग शहरों में संस्कृत विश्वविद्यालयों के कई कॉलेज और संस्थान भी चल रहे हैं। IITs और IIMs जैसे संस्थानों में संस्कृत केंद्र काफी पॉपुलर हो रहे हैं। আৰু মন কি বাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুনিছে মন কি বাতৰ কাৰ্যসূচী। আমি এইখিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম।